Jai Hind students, I, Aarti Dua, on behalf of Dr. K.N. Modi Global School, welcomes you all. Hope you all are fine. After a long time, we are again here in GK class. So, my dear students, today we are going to start our PT2 syllabus of GK. So, open your GK book, page number 34, chapter 28. Let's start. Dear students, today we are going to start our topic facts about legends of sports. For that, you must know the meaning of legends. What do you mean by legends? Legend means you can say celebrity or famous people. So, today we will learn some new things, or we can say some new facts that you have not aware of them earlier. मीन्स उनके बारे में शायद हम बहुत थोड़ा सा जानते थे, लेकिन आज हम उनके बारे में बहुत कुछ नया पढ़ेंगे. These are some famous sports person or celebrities or famous peoples of sports. So let's start. First, PT Usha. Who is she? Yes, she is an Indian sprinter. What do you mean by sprinter? Means runner. Yes, PT Usha. Today we will learn about PT Usha. She was born in Kutali, Kerala. She has been associated with Indian athlete since 1979. She is often called the Queen of Indian track and field. Her education, if we will talk about the education, her education is from sports school in Kannur. It is in Kerala, where she has trained and eventually became the queen of track and field in India. वहीं से ही उन्होंने एक आप कह सकते हैं ट्रेनिंग ली थी स्पोर्ट्स की, और इंडिया के ट्रैक एंड इसको इनको क्या कहा जाता था, क्या इनको अवार्ड एक तरह से दिया गया, क्या स्लोगन, और आप कहेंगे इनके लिए क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड. She started her career with a scholarship of rupees 250 per month, allowing her to study in a sports school in Kannur, Kerala. मीन्स पीटी उषा जी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो उनको उसके लिए 250 रुपीज़ की स्कॉलरशिप अपने उनको मिलती थी. उसके साथ ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां उन्हें एक बहुत ही ट्रेंड किया गया, और बाद में उन्होंने इंडिया में क्या मिला उनको, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड का उनको खिताब मिला. सो what we have learned today, we have learned about PT Usha, that she had started her career with 250 rupees of scholarship. Now second, Major Dhyanchand. Who is he? Yes, Major Dhyanchand was an Indian field hockey player widely regarded as the greatest field hockey player in history and one of the greatest players of all time according to our Indian, you can say in Indian history, है ना. तो कौन थे ये मेजर ध्यानचंद जी? Indian hockey player. He is known as the Wizard of Hockey, and the legend was honored by Austrian citizens in Vienna. They made a statue of him with 4 hands and 4 sticks to depict the magnificent skill and control with the ball. Means मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी एक हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, और उनको क्या कहा जाता था, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था. मीन्स ये कहा जाता था कि उनके हाथ में कोई जब हॉकी की स्टिक आती है तो उनसे बहुत ही जादू होते हैं. द लेजेंड वॉज ऑनर्ड बाय ऑस्ट्रियन सिटीजन्स इन वेना, और उनको जो ऑनर दिया गया वो किसने दिया? ऑस्ट्रियन सिटीजन्स ने वेना में दिया, और उनके लिए कहा जाता है उन्होंने एक स्टैचू बनाया, उसमें 4 हाथ और 4 स्टिक्स को यूज करके, और उसको
अपने बॉल को कंट्रोल किया और उस तरीके से उन्होंने अपना एक स्किल या आप कह सकते हैं कि अपना शानदार कौशल दिखाया। सो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने अपना नाम कायम किया, किसके रूप में किया, एक लेजेंड के रूप में, है ना। सो और जो उनको अवार्ड दिया गया वो पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। थर्ड, राहुल द्रविड़. Rahul Dravid is a former Indian cricketer and captain of the Indian national team. He is the director of cricket operations at National Cricket Academy, Bengaluru. He also monitors the progress of India and India under 19 cricket teams. I think you have aware about you have ever heard about Rahul Dravid? Yes, he is a wall dedicated to him in front of Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, which is made of 10,000 bricks, commemorating landmark of crossing 10,000 run. This wall was inaugurated by सचिन तेंदुलकर. देखा कितने अच्छे हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में लेजेंड्स हुए हैं। उनके पास बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सामने एक उनके मतलब आप क्या कह सकते हैं कि डेडिकेट किया एक वॉल को जो 10,000 ईंटों से बनी थी और जो 10,000 रनों को पार करने वाले एक ऐतिहासिक चीज़ के उसमें याद में बनाई गई थी। और इस जो दीवार का, इस वॉल का जो उद्घाटन था, मीन्स इनॉग्रेट किया था उनको, वो सचिन तेंदुलकर ने किया था। देखा आपने कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए सब लोग हमारी कितनी तारीफ करते हैं और हमें कितना, हम उस चीज़ से कितना फेमस होते हैं। सो अभी तक हमें ये पता था राहुल द्रविड़ जी के बारे में कि वो एक क्रिकेटर है, लेकिन आज इतनी सारी हमने न्यू थिंग्स उनके बारे में आज हमने लर्न की। नाउ फोर्थ, माउंटेनियर बचेंद्री पाल. Who is she? Yes, Bachendri Pal is an Indian mountaineer who is 1984 became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. She was awarded the third highest civilian award Padma Bhushan by Government of India in 2019. मीन्स इनको जो माउंटेनियर कौन होते हैं, जो माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं, मीन्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द टर्म इन हिंदी वी कैन यूज पर्वत आरोही, मीन्स जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो बचेंद्री पाल जी एक ऐसी वीमेन थी और उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन किया 1984 में, उनको उनका फर्स्ट सबमिशन हुआ माउंट एवरेस्ट के लिए, है ना। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन to climb Mount Everest, she also led a team of 18 women in 3 rafts with cross the Ganges River from Haridwar to Calcutta, covering a distance of 2,155 kilometers in 39 days. Means क्या समझ में आया इससे? Yes. बचेंद्री पाल जी जो थी वो माउंटेन पर चढ़ाई करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 3 राफ्टों में 18 लेडीज़ की एक टीम बनाई, विमेन की एक टीम बनाई और उसको लीड किया उन्होंने, और जिसने गंगा को पार किया हरिद्वार से कोलकाता तक। और कितने दिनों में? यस, इन 39 डेज। और कितने किलोमीटर? 2155 किलोमीटर्स की दूरी उन्होंने तय की। तो ये कौन थी? माउंटेनियर बचेंद्री पाल। नाउ फिफ्थ, yes, look at the picture. Who is he? Yes, he is Vijendra Singh. Vijendra Singh Beniwal is an Indian professional boxer and politician. As an amateur, he won a bronze medal at the 2008 Beijing Olympics, becoming the first Indian boxer to win an Olympic medal. ये क्या कहना चाहिए कि एक बॉक्सर और एक पॉलिटिशियन भी है ना। ही इज कॉल्ड द इंडियन डेविड बेकम।
He earned this title due to his looks. Apart from being a successful boxer, his good looks prompted the foreign media to give him this title. मीन्स विजेंद्र सिंह को उन्हें भारतीय डेविड बेकम कहा जाता है, ये उनको टाइटल मिला. ओके उन्होंने अपने लुक्स के कारण यह खिताब जीता. ये एक सफल बॉक्सर होने के साथ साथ क्या थे, ये इनके अच्छे लुक से उनको ये खिताब किसने दिया, फॉरेन की मीडिया ने उनको दिया. तो उनका लुक भी बहुत ही मतलब अच्छा था. आप कह सकते हैं कि ही इज अ गुड लुक बॉक्सर. ओके हु इज ही? यस ही इज विजेंद्र सिंह. नेक्स्ट इज सचिन तेंदुलकर. Yes, I know. All are aware. Who is he? Yes, Sachin Ramesh Tendulkar is a former international cricketer of India who served as captain of the Indian national team. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. Yes, और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? Yes, he is awarded with भारत रत्न, विजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. इनको इन सब ये वाले सारे अवार्ड मिले. नाउ लुक एट द बुक. ही फील्डेड फॉर पाकिस्तान वंस अहेड ऑफ अ टेस्ट सीरीज इन 1987. India and Pakistan were playing an exhibition match where Imran Khan's team was short on fielders. It was then that a 13-year-old Sachin was asked to field for Pakistan. Means सचिन तेंदुलकर जो थे उन्होंने 1987 में एक टेस्ट सीरीज में पहली बार पाकिस्तान के लिए उन्होंने फील्डिंग की. भारत पाकिस्तान एक जो मैच खेल दोनों के बीच में जो खेल हो रहा था, वहां इमरान खान की जो टीम थी वो कम थी. तब 13 इयर्स के जब सचिन थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करने को उनको कहा गया था. सो ही इज अ ग्रेट लेजेंड इन इंडियन स्पोर्ट्स. नाउ सेवंथ, विश्वनाथन आनंद. Who is he? Yes, he is an Indian chess grandmaster and a former world chess champion. He became the first grandmaster from India in 1988 and is one of the few players to have surpassed an elo rating of 2800, a feat he first achieved in 2006. Anand is a 5-time world champion, world you can say chess champion. और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे इस गेम में? चेस ऑस्कर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड. Okay, now look at the book. The Padma Vibhushan is the second highest civilian award given in India. He was the first sports person to win the Padma Vibhushan in 2007, making him the first sports person in Indian history to accomplish this. Means विश्वनाथन आनंद जो थे उनको क्या मतलब खिताब मिला या उनको कौन कौन से अवार्ड मिले? उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला गया और भारत में दिए जाने वाला दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. और उनको 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले वो एक पहले प्लेयर थे, खिलाड़ी थे वो, जिसने वह जो अवार्ड मिला उसको हासिल करने के लिए भारत के इतिहास में पहले चेस के चैंपियनशिप के नए खिलाड़ी बने. 8th, सुशील कुमार. Who is he? Yes, he is he is a former Indian wrestler. He carried the Indian flag at the opening ceremony of 2012 London Olympics. His 2008 Olympic medal was second for India in wrestling. Yes, who is he?
He is a great wrestler, Indian wrestler, and the first since Kashaba Dada Saheb Jadav's bronze medal at the 1952 Summer Olympics. Now look at the book. His father was a DTC bus driver. Even though he had a small income, his father Diwan Singh supported him with his dreams and ensured that he did not face any troubles while pursuing his career in wrestling. Means जो सुशील कुमार जी थे, उनके जो पापा थे, उनके जो फादर थे, वो एक डीटीसी के बस के ड्राइवर थे। भले ही उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही छोटी थी, मतलब कम थी, लेकिन उनके जो फादर थे मिस्टर श्री दीवान सिंह, उन्होंने उनको बोला कि अपने सपनों के साथ आगे बढ़ो, और ये उन्होंने उनको कंफर्मेशन दी, सुनिश्चित किया उनके लिए कि रेसलिंग में अपना करियर को आगे बढ़ाते हुए उसको आगे ले जाओ, अपने टैलेंट को, और किसी भी परेशानी को ध्यान मत दो, और अपने करियर को इतना आगे ले जाओ रेसलिंग में कि आगे जाके कोई भी परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। तो आपने देखा उनके जो फैमिली में उनके फादर ने उनको कितना सपोर्ट किया। तो ऐसे थे हमारे सुशील कुमार जी, मीन्स ऐसे हैं हमारे सुशील कुमार जी। नाउ नाइन्थ, मैरी कॉम। Who is she? Yes, Mary Kom is an Indian amateur boxer, politician, and incumbent member of Parliament, Rajya Sabha. Okay, कौन है मैरी कॉम? She is a boxer. As boxing was not considered to be an appropriate sport for a woman in her family, Mary Kom tried to hide her passion for the sport. But after she won the Manipur State Championship, a newspaper published her photo with her father saw. मीन्स जब मैरी कॉम जो थी, ये कौन थी? एक बॉक्सर थी, और लेकिन ये एक महिला थी, एक लेडी थी, इसीलिए उनके लिए ये कहा जाता था कि ये जो क्या कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट है, ये विमेंस के लिए नहीं है। लेकिन उनके परिवार में मैरी कॉम ने खेल के प्रति अपने जुनून को, अपने पैशन को छिपाने की, हाइड करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मणिपुर स्टेट चैंपियनशिप में उनको जब जीत हासिल हुई, वो जब जीती, उसके बाद उनको ये उनकी जो फोटोग्राफ थी वो एक न्यूज़पेपर में छपी, और सबसे पहले उनके पिता ने देखी। तो तब से ही उनका जो पैशन था, उनका जो क्या कह सकते हैं, बॉक्सिंग का जो जुनून था, वो उन्होंने उनको अपना एज अ करियर बनाया। तो हु इज शी? लुक एट द पिक्चर, शी इज मैरी कॉम। नाउ here we have ended our chapter, that is chapter number 28. In next video or in next class, we will discuss some question answer based on this topic. So thank you and have a nice day.